Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fine. Student, take one rough copy and pencil with you and note down the important points. And after watching the video, if you have any doubt, then you can note down that doubts in your rough copy, and the next day in your online classes you can clear your doubt with me. Okay student, in my let do little recapitulation of the topic which I have covered, explained you in the previous video. We are discussing what? The percentage of water on the surface of the earth is 72%, or even you can say 3/4. So that I explained you how the percentage of water is 72%. Now student, after that we discuss we discuss one activity which is given in your book on page number 47. Is it clear? Activity 1 I have discussed with you, and activity 2, these both the activity which we have discussed in the previous video. What is evaporation? Let one time more I explain you what is evaporation. Okay, see, the process by which water changes into water vapor is called evaporation. One more time, see, evaporation. What is evaporation? The process by which water changes into water vapor on heating is called evaporation. See student, what is evaporation student? The process by which water changes into water vapor on heating is called evaporation. This two process which I will discuss with you, that is, one is evaporation and one is condensation. These, please understand it, these two process play a very important role in water cycle. If you are unable to understand what is evaporation and condensation, then you are unable to understand what is water cycle. So student, the process by which what we do, what happen in this process, see, water is in three form. Daily, this is my third video on this chapter, and daily I am repeating this thing. Daily I am repeating that there are three forms of water, that is solid, liquid and gas. Please student, in all the videos before starting the topic, all the time I
explain you. There are three forms of a water, that is solid, liquid and gas. So this thing you have to understand. The original form is, that is water is in a liquid form. आप वाटर को जिसमें भी डाल दो, वाटर उसी की शेप ले लेता है. If the water is in the bucket, it take the shape of the bucket. If the water is in glass, it take the shape of a glass. So student, please understand that by freezing, the water change in a solid form, and that form we say ice. That form we say ice. Is it clear? Liquid form is water, and gas, when on heating can be done by maybe burning of a wood, kerosene, coal, or here sunlight. So it change into water vapor. This is very important that you understand this, that water can be in solid form also. You can, if you can see it in solid form also, liquid form also, and gas form also. Is it clear? Gas form of a water is known as water vapor, liquid form is the water, and solid form is the ice. Solid form is the ice. So these are the three forms of a water. This is very important. If someone show you ice, so what you will say? This is the solid form of a water, that is ice. Is it clear? And what are the sources of water on the earth? How the water is 72%? How water cover 72% of the earth's surface? That with the help of all the things from where the water is present in these different forms. In these different form where the water is present, that is the reason it is 72%. For example, solid. If you see the mountains, very high mountains, they are covered with, because the weather in that area is very cold. So student, you will see mountains are covered with snow. So that is also water, that is a solid form of a water. Glaciers, and in this form, liquid form, you can see the water in river, pond, lake, sea, oceans. In this form you can, and even here underground water also, which you take from the well, कुएं से जो पानी आप निकालते हो. और अगर आप विलेजेस एरिया में जाओगे बेटा, तो आप देखोगे लोग ट्यूबवेल्स लगा रहे होते हैं. दे यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन, खेती करने के लिए. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट वाटर कल्टीवेशन हो सकती है. विदाउट वाटर आप फील्ड में नई क्रॉप्स हो सकती हैं. इट इज यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस आल्सो, वाटर. सो स्टूडेंट, underground water is also used in this. In farmers use underground water also with the help of the tube wells. So in this liquid form you are able to see the water in river, ponds. Even in the monsoon season you will see the land submerged in the water. Submerged मतलब डूबे होते हैं पानी में. क्या होते हैं? पानी में डूबे होते हैं. Is it clear? Sea है, oceans है, they all have water. And when we talk about this gas, on heating it change into a water form.
water vapor. So see student, these water vapor get mixed with the air. So what does it means? It means that water is present all around us. हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में वाटर है इन द एयर में, ठीक है. बट इट इज इन विच फॉर्म? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस. इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए, ये किस फॉर्म में बेटा? ये गैस के फॉर्म में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं. इन दिस वे द 72% ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with a water, because all 72% is not in the form of a liquid water. It is also in the form of a solid, that is ice. You will see in the mountains area and glaciers, and gas form in the form of a water vapor. It is in our surrounding. हमारे चारों तरफ वाटर वेपर है, क्योंकि वो वाटर की कौन फॉर्म है? गैस फॉर्म है. इज इट क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट, इवापोरेशन वन मोर टाइम अंडरस्टैंड. व्हेन वी ऑन हीटिंग, when we heat the water, then what's happen? The boiling point of water is 100 degrees Celsius. The boiling point of water is 100 degree Celsius. So after that it change its form. It is converted into another form, that is known as gas. That is known as gas, and this gas form is known as water vapor. This gas form is known as water vapor. So now I think evaporation process is very clear to all of you. How? On heating and boiling point. Boiling point का मतलब होता है, आज एक ऑनलाइन क्लास में बच्चा बोल रहा था, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जब वाटर को आप गर्म करोगे, हीट करोगे किसी से, तो वो उबलने लगता है. पानी उबलता हुआ देखा है? विंटर में अक्सर होता है, हम लोग ठंडे पानी से नहाने में बहुत डरते हैं, तो बोलते हैं मम्मी वार्म वाटर चाहिए. होता है ना कभी ऐसे? तो वाटर को मम्मी कैसे वार्म करती हैं? उसे हीट करती है. इज इट क्लियर? सो बॉइलिंग, उबलता हुआ पानी, और पानी जब उबलने लगता है तो वो किस फॉर्म में चेंज होने लगता है? गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर. तो व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू अ वाटर वेपर. यहां हमने चेंज इनटू वाटर वेपर डायरेक्ट लिख दिया, गैस नहीं लिखा. गैस का जो फॉर्म में चेंज होता है वाटर, उसको ही वाटर वेपर बोलते हैं. इसलिए ये मत सोचना सर गैस गैस बोल रहे हैं और यहाँ वाटर वेपर लिख दिए. जो वाटर की गैस फॉर्म है उसी को वाटर वेपर बोलते हैं. दैट इज द रीजन हियर आई हैव रिटन वाटर वेपर. ठीक है? और ये कैसे होता है? ऑन हीटिंग. इज इट क्लियर? और सबसे ज्यादा वाटर कैसे हीट होता है? बाय द सनलाइट. बाय द सनलाइट. मैक्सिमम वाटर इज हीटेड बाय द सनलाइट. इज इट क्लियर? This you will understand when I explain you evaporation, condensation, and after that when I start teaching you water cycle. So this is your evaporation. Is it clear? Now let's discuss what is a condensation. What is condensation? Now discuss this. Condensation. The process by which water
वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर is called a condensation. See, the process by which water vapor, changes into liquid water is called a condensation. Now see student, what happen in this process? Try to understand. You on heating, the water change in the form of a gas, because boiling temperature of water is 100 degrees Celsius. Okay, when you are continuous heating the water, जब आप लगातार पानी को हीट कर रहे हो तब तो वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जब आप उसको हीट करना बंद कर दोगे तो वो फिर से वाटर बन जाएगा ना. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब वो वाटर वेपर फॉर्म में कैसे होता है? जब आप उसे कंटिन्यूअस हीट कर रहे हो, तब वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है. इज इट क्लियर? लेकिन आपने अगर उसको हीट करना बंद कर दिया, मान लो आपने हीट करना बंद कर दिया वाटर को, तो जब वो ठंडा होगा, ठीक है, जब वो कूल होगा, ठंडा होगा, तो फिर से वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वाटर ही के फॉर्म में आ जाएगा. दैट इज हियर कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड वाटर. यहां एक वर्ड मैं भूल गया लिखना, ऑन. अच्छा, यहां स्पेस इज लेस, सो आई रब इट एंड राइट on cooling. Is called condensation. ठीक है. सो कंडेंसेशन कब होती है? व्हाट इज कंडेंसेशन? ऑन हीटिंग, जब आप उस वाटर को कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हीट कर रहे थे तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता जा रहा था, गैस बनता जा रहा था. ठीक है, जब आपने हीट करना बंद कर दिया तो वो वाटर फिर से कूल हो जाएगा. इज इट क्लियर? जस्ट टेक वन एग्जांपल. योर मदर गिव यू 1 glass ऑफ मिल्क टू ड्रिंक. ठीक है, व्हेन योर मदर गिव यू ग्लास ऑफ ए मिल्क, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को फील किससे करते हैं? अपनी स्किन से. व्हेन यू होल्ड द ग्लास, जब आप ग्लास को होल्ड करोगे, एट दैट टाइम इट इज हॉट. ठीक है, या तो आप उसे पीने की कोशिश करोगे, व्हेन इट टच विद योर टंग आपको लगेगा बहुत हॉट है, आप थोड़ी देर के लिए उसे टेबल पे छोड़ देते हो. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने उसे टेबल पे छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम, फिर जब आप उस सेम ग्लास को टच करोगे अपने हैंड से, तो वो आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा. ठीक है, एंड यू कैन ड्रिंक इट. इन द सेम मैनर, जब हम कंटिन्यूअस उसे हीट कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर बॉइल हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? ये वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है. लेकिन व्हेन, अब उसे जब हीट नहीं मिली, व्हेन इट डज नॉट गेट हीट, अब उसे जब हीट नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा? कूल होगा. वो क्या होगा बेटा? कूल होगा, ठंडा होगा. और जब वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से लेस होने लगेगा, तो वो फिर से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड वाटर बन जाएगा. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलता कब है वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब आपने हीट देना बंद कर दिया, तो अब उसका टेम्परेचर जो है वो लेस होगा ना, तो धीरे धीरे स्लोली वो ठंडा होने लगेगा. तो वो फिर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? लिक्विड वाटर बन जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा वो. और ऐसा कब होगा बेटा?
ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग मीन्स ठंडा होने पे, ऑन कूलिंग मीन्स ठंडा होने पे, दैट इज कंडेंसेशन। आई होप you all are able to understand. Okay, so this, and even if you are not able to understand, ask in online class if there is any confusion. मैंने पूरा इसको डिटेल में आपको बता दिया, अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है in understanding of a evaporation and condensation, then again I teach you this topic on the board. ठीक है, one time I repeat it for you so that you are able to understand. ठीक है, अब मैं टेम्परेचर को लिख के बताता हूं, इससे तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये तो मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा, ठीक है, अब मैं तुम्हें टेम्परेचर से इसको करके बताता हूं, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर सिंपल ढंग से तुम्हें आ जाएगा। देखो, so both the process evaporation and condensation, I have explained the process by which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation, is called condensation. अब देखो और सिंपल ढंग से बताता हूं, देखो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मान लो एक यूटेंसिल है, ये हमने वुड ली और ये हीट हो रही है, व्हाट इज दिस, फायर, आ गए और क्या जलाया हमने, वुड। अब इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किया और ऊपर एक प्लेट लगा दी, इसको कवर कर दिया प्लेट से, ठीक, एक प्लेट से कवर कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन आई स्टार्ट, अब यहां हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं वाटर को, देन यू विल सी, तुम्हें बहुत सा स्टीम निकलते हुए दिखेगा, ठीक है, स्टीम निकलते हुए देखेगा। स्टीम मतलब होता है भाप, देखा व्हाइट कलर का ऐसे भाप निकलता हुआ दिखता है। इज इट क्लियर? तो हाउ दिस हैपन, वाटर का जब टेम्परेचर, और टेम्परेचर से समझोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसका मतलब वाटर 100 डिग्री से भी ज्यादा बॉईल हो गया, ज्यादा गर्म होने लगा, 100 डिग्री से अबव हो गया। अब क्या हुआ, ये स्टीम फॉर्म में हो गया, यही क्या है तुम्हारा वाटर वेपर है। 100 डिग्री से जब अबव होने लगता है, 100 डिग्री होने लगता है, 100 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या बनने लगता है, वाटर वेपर। इज इट क्लियर? आया समझ में? वाटर वेपर ऐसा सनलाइट से भी होता है, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं तुम्हें, अभी मैं हीटिंग का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सो नाउ आई व्हाट टू डू, ऑब्जर्व द बोर्ड, बोर्ड देखो, यहां पे वाटर हीट हो रहा है, फायर लगी हुई है, FIRE फायर है, वुड बर्न कर रहे हैं, ये हीटिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है, ठीक है। ये स्टीम आपको दिख रही है, जिसको भाप कहते हैं, ठीक है, स्टीम दिख रही है। तो अब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर किससे ज्यादा हो गया, 100 से अबव होने लगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल डू, स्टॉप हीटिंग द वाटर, वाटर को गर्म करना बंद कर दो, वाटर को हीट करना बंद कर दिया हमने, इसका मतलब हमने फायर को बंद किया, वुड्स को भी हटा लिया, वुड्स को भी हटा दिया, और फायर भी हट गई, वुड भी हट गई, तो हीटिंग होना भी बंद हो गया। व्हेन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, 2-4 मिनट बाद जब आप इस
ये इसे मैंने एक प्लेट लगाई थी, दिस इज ए प्लेट बाई विच आई कवर दिस यूटेंसिल, इस यूटेंसिल को जिससे मैंने कवर किया था, ठीक है। अब आप इस प्लेट को 2 और 3 मिनट्स बाद देखना, ऑब्जर्व करना। 2-3 मिनट्स बाद या आफ्टर फ्यू सेकेंड या 1 मिनट बाद ही आप इस प्लेट को ऑब्जर्व करना। यू विल सी स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यू विल ऑब्जर्व स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको क्या दिखेंगे? स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इस प्लेट पे दिखेंगे, छोटे छोटे ऐसे पूरे स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट, ये क्या है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट, ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स वाटर के कैसे आए? क्योंकि हमने हीट करना बंद कर दिया। व्हेन वी स्टॉप हीटिंग देन व्हाट हैपेंस? अब टेम्परेचर क्या हुआ वाटर का? लेस हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ वाटर का? लेस हुआ। अब टेम्परेचर जब लेस हुआ तो जो वाटर वेपर था, जब टेम्परेचर लेस हुआ तो इसका मतलब अब वो वाटर क्या हो रहा है? क्या हुआ? कूल हुआ। जब टेम्परेचर लेस हो गया, हीट करना बंद कर दिए तो वो कूल हो गया, ठीक है। जब वो कूल हो गया तो वो फिर किस फॉर्म में आ गया? वो फिर लिक्विड वाटर बन गया। वो फिर क्या बन गया बेटा? इट अगेन बिकम अ लिक्विड वाटर। इट अगेन बिकम्स अ लिक्विड वाटर। इज इट क्लियर? सो इसीलिए प्लेट्स पे तुम्हें ड्रॉप 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 ऑफ वाटर के दिखते हैं, बिकॉज ऑन कूलिंग अगेन इट चेंज इनटू ए लिक्विड वाटर। यही मैंने आप लोग को किसमें बताया? अभी कंडेंसेशन में। अभी याद है? जस्ट पहले मैंने आपको कंडेंसेशन की डेफिनेशन दी थी। जब हम इसे हीट कर रहे थे तो वो प्रोसेस क्या हो रही थी? इवापोरेशन। एट दैट टाइम इवापोरेशन। और व्हेन टेम्परेचर कूल हुआ तो ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स तुम्हें देखने के लिए मिले। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? ये प्रोसेस क्या है तुम्हारी? कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या है तुम्हारी? कंडेंसेशन। दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखो बहुत सिंपल में बताया है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड evaporation, and the process by which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation। और पूरे ये जो वाटर साइकिल है ना बेटा, ये पूरी प्रोसेस हमारे सराउंडिंग में होती रहती है। इसीलिए मैंने तुम लोग को इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बताया। जब वाटर को ऑन हीटिंग करोगे तो इवापोरेशन हो रहा है वाटर का। अब तुम्हारी ब्रेन में ये बात आ गई होगी, इवापोरेशन कब होगा? जब 100 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया? जैसे टेम्परेचर मतलब आप लोग समझते होगे ना, जैसे समर चल रहे थे कुछ दिन पहले, तो समर में आदमी एसी में बैठता है, फैन चलाता है, अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और लग रहा है 45 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर होगा। तो आप समझ रहे हो ना टेम्परेचर मतलब? सेम थिंग है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट कर रहे हो 100 डिग्री तक हो गया तो अब उसका वेपर बनने लगेगा, वेपर, ठीक है। वही है आपका वाटर वेपर। और ऑन हीटिंग हो रहा है, हीट करने पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। व्हाट वी से इट? इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। इज इट क्लियर? और नाउ व्हेन द वाटर कूल्स, आपने हीट करना बंद कर दिया, जैसे मैंने एक पिक्चर में दिखाया, फायर जली थी, वुड था, ऑन हीटिंग हो रही थी। आई रिमूव फायर, आई रिमूव वुड, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी स्मॉल 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 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन दिस प्लेट। व्हाई? बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का 100 कब हो रहा था? हीट करने पे। हीटिंग बंद कर दी
तो नाउ द टेम्परेचर बिकम स्लोली डाउन, कूल होने लगा, कम होने लगा, मतलब अब 100 से नीचे जाने लगा। जैसे जैसे वो 100 से नीचे जाने लगेगा तो जो आपके वाटर वेपर हैं वो फिर किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड वाटर बन जाएंगे। किस में बन जाएंगे, लिक्विड वाटर बन जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। थैंक यू स्टूडेंट।